अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 17। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। फाइलम आर्थ्रोपोडा में मैंने आपको बताया था फाइलम आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम जो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे डैट इज़ फाइलम अकाइनोडर्मेटा। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। नंबर 8 फाइलम जो है हम पढ़ रहे हैं आज। फाइलम अकाइनोडर्मेटा, they are exclusively marine animals. They are flattened like biscuit, for example cake urchin. Some are star shaped with short arms, for example starfish or sea stars. Some are globular, for example sea urchin. Some are star shaped with long arms, for example brittle star, and some are elongated, for example sea cucumber. They are triploblastic and due to stomes ciliates. Their larvae are bilateral symmetrical, but the adults show radial symmetry. In their radial symmetry, the body parts are arranged in 5 or multiples of 5 around an oral-boral axis. They possesses a calcareous endoskeleton in the form of plates called ossicles. These plates are derived from mesoderm but come out of skin also and make spines on the skin. They have water vascular system consisting of tubes and spaces present in the coelom. A ring canal surrounds the mouth. It opens outside through a sieve-like plate called madreporite. 5 or multiples of 5 radial canals branches from the ring canal. Many lateral canals emerge from each radial canal, and each lateral canal end at a tube foot. Tube foot are the extension of water vascular system. The tube feet extend and attach with some substrate. When water is drawn back from the sucks tube feet, next page पे आप आए, it contract and body is pulled. Echinoderm possesses a tube-like digestive system. The mouth leads to esophagus, stomach, intestine, and rectum. The rectum opens out through anus. There are no specialized organ for respiration and excretion. They possess a poorly developed nervous system made up of a nerve net, a nerve ring, and 5 or multiple of 5 radial nerves. Most sensory receptors are distributed over the surface of the body and tube feet. Asexual reproduction involves division of the body followed by the regeneration of each half. Echinoderms are unisexual. Many echinoderms are able to regenerate the lost part, and some, especially sea star and brittle star, drop various parts when they are under attack and then regenerate the lost part. अभी जो टॉपिक जो फाइलम बेटे मैंने रीड आउट किया है डैट इज़ फाइलम अकाइनोडर्मेटा। ठीक है, फाइलम अकाइनोडर्मेटा क्या चीज़ है? दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स। अभी तक हमने डिफरेंट टाइप में जब फाइलम्स पढ़े हैं, आर्थ्रोपोडा भी जब हम पढ़ के आए तो मैंने आपको बताया था कुछ जो हैं टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ इक्वेटिक हैं, कुछ जो हैं वो मॉइस्ट कंडीशन में रह रहे हैं, डिफरेंट टाइप हैं। कुछ हमने कुछ फाइलम्स में हम पढ़ के आए थे कि दे आर पैरासाइट एज वेल। तो यहाँ पे फाइलम अकाइनोडर्मेटा में जितने भी इनके एनिमल्स हैं वो तमाम के तमाम बेटे क्या है? मैरीन है। क्या है? मैरीन है। फ्रेश वाटर में भी नहीं होते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको ओशन में और सी में जो हैं ये वाले एनिमल्स जो हैं मिलेंगे। इनकी डिफरेंट शेप्स हैं, उसी की बेसिस पे इनकी आगे फर्दर एग्जांपल्स भी हैं। इनकी जो है फर्दर डिवीजन भी इनको बहुत सारी क्लासेस में जो है आगे डिवाइड किया गया है। दे आर फ्लैटन, कभी कभार ये बिल्कुल फ्लैटन है लाइक बिस्किट की तरह भी इनकी शेप है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन एग्जांपल इसकी केक अर्चन जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है। कुछ जो है उनकी शेप स्टार की तरह की होती है, लेकिन उनके आर्म जो हैं स्टार्स के वो छोटे होते हैं। उसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? सी स्टार और सी फिश। सी स्टार और स्टार फिश इसकी कॉमन एग्जांपल है। कुछ ऐसे हैं जो ग्लोबुलर होते हैं, उनकी शेप जो है वो ग्लोबुलर होती है, उनकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? सी अर्चन है। कुछ ऐसे हैं जो हैं स्टार शेप, लेकिन उनके जो आर्म्स हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। उनकी कॉमन एग्जांपल क्या आ गई बेटे? ब्रिटल स्टार जो है उनकी कॉमन एग्जांपल है। फिर आगे है कि कुछ जो है एलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। कॉमन एग्जांपल उनकी लंबे, एलोंगेटेड का मतलब होता है लंबे, लेंथ वाइज लंबे होते हैं। कॉमन एग्जांपल उनकी सी क्यूकम्बर है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, उनकी बॉडी की यानी कि 3 जो हैं वो लेयर्स हैं। और दूसरी क्या चीज़ इनकी प्रॉपर्टी आ गई? ड्यूट्रोस्टोमस सीलियोमेट्स। ठीक है,
दे लार्वा आर बायलेटरी सिमेट्रिकल, इनके लार्वा जो हैं वो बायलेटरी सिमेट्रिकली है, और अडल्ट जो हैं वो रेडियल सिमेट्री होते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में क्या है कि इनकी बॉडी को हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में जो है बेटे डिवाइड कर सकते हैं, मे बी 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5 अराउंड एंड दरमियान में इनकी बॉडी का जो सेंटर है ना, वहाँ से आप इनकी बॉडी को 5 या 5 के मल्टीपल्स में, इक्वल पार्ट्स में आप लोग इनको जो है वो डिवाइड कर सकते हो। क्या मैंने कहा, रेडियल सिमेट्री है इनकी, ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है कि मैंने आपको बताया कि दे पोजेसिस है कैल्केरियस एंडोस्केलेटन। जो इनका एंडोस्केलेटन है बेटे वो कैल्केरियस है, यानी कि कैल्शियम और उसके डिफरेंट टाइप के जो आगे फर्दर कैल्शियम कंटेनिंग मिनरल्स ही हैं, उन्हीं से जो है बना होता है, ठीक है। इनका एंडोस्केलेटन की बात कर रही हूँ मैं। फिर आपका जो नेक्स्ट चीज़ इनमें आ रही है वो क्या है बेटे, आपको बताया है कि इनका जो इनका एंडोस्केलेटन होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, एंडोस्केलेटन है, और वो किस मटेरियल का बना होता है वो भी आपको बता दिया, किसका बेटे, कैल्केरियस। आपने ये बात इसकी जो है वो याद रखनी है। फिर आपको क्या बता दिया, आपको बता दिया है कि इनका जो स्केलेटन है ना बेटे, उसमें ना स्पेशल टाइप की प्लेट्स जो हैं वो प्रेजेंट है इनके एंडोस्केलेटन में। उन प्लेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं। और ये जो प्लेट्स होती हैं ना, जब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होते हैं तो बेटे 3 तरह की लेयर्स होती हैं ना, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। तो ये जो ऑसिकल्स होते हैं ये मीजोडर्म से जो है ये बनते हैं, ये जो प्लेट्स हैं स्पेशल टाइप की। और ये स्किन के ऊपर जो है प्रेजेंट होती हैं, और स्किन में ये स्पाइंस की तरह जो है आपको नज़र आएंगी। यानी कि जो इनकी आउटर मोस्ट लेयर है, जो बॉडी की इनकी आउटर मोस्ट लेयर है, डेट स्किन, स्किन के ऊपर छोटे छोटे से स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये स्पाइंस क्या होते हैं, ये प्लेट्स होती हैं जो कि जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं। क्लियर हो गया। इनकी बॉडी के अंदर वेल डेवलप वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये थ्रू आउट अपनी लाइफ जो है ये मैरीन ही है, ये पानी ही के अंदर रहते हैं। तो इनका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो वेल डेवलप है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स, उसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स हैं, और पूरी बॉडी में जो है स्पेसेस जो हैं प्रेजेंट है। इसके अलावा इनके पास जो है इनका माउथ जो है उसमें रिंग कैनाल जो हैं वो प्रेजेंट है। और जो है मैंने आपको क्या बता दिया, क्योंकि ये मैरीन एनिमल्स हैं, ये बेटे ज़्यादातर अपनी पूरी लाइफ जो है ये वाटर ही में गुजार देते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम में ट्यूब्स प्रेजेंट हैं और क्या स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इसके अलावा एक रिंग कैनाल प्रेजेंट है जो कि उसके माउथ को सराउंड कर रही है, और वो बाहर जो है एक छोटी सी सीव लाइक प्लेट है जो कि आउटसाइड ओपन होती है। उस प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, मैड्रीपोराइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैड्रीपोराइट कहते हैं बेटे। ये सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अभी तक हम किसी फाइलम में नहीं पढ़ के आए। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ फाइलम एकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है बेटे। इसमें क्या है, 5 या मल्टीपल्स ऑफ 5 रेडियल कैनाल्स जो हैं वो इस रिंग कैनाल से निकलती हैं, जो हमने अभी पढ़ी है ना, रिंग कैनाल जो के माउथ को सराउंड करती है। तो उसमें से 5 या मल्टीपल्स ऑफ 5 कैनाल ब्रांचेस जो हैं वो निकलेंगी, ठीक है। मैनी लेटरल, अब उस मेन कैनाल जो रेडियल कैनाल है उस कैनाल से भी जो है बहुत सारी कैनाल जो हैं जो निकलती हैं, जो कि लेटरल साइड्स जितने भी फुट्स हैं, ट्यूब फुट, जैसे स्टार फिश है, स्टार फिश के अंदर बहुत सारे उसके फुट है ना, 5 भी हो सकते हैं, आगे 10 भी हो सकते हैं इवन। तो हर ट्यूब फीट के अंदर जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं, ये लेटरल कैनाल जो हैं जो कि रेडियल कैनाल से निकलती हैं, वो हर ट्यूब फूट के अंदर जो है वो चली जाती हैं। ट्यूब फीट आर द एक्सटेंशन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। कितनी देखो इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो ट्यूब फूट आपको नजर आते हैं बेसिकली वो क्या चीज़ है बेटे, दे आर एक्सटेंशन। किस चीज़ की एक्सटेंशन, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम की एक्सटेंशन है। ट्यूब फीट जो है एक्सटेंड करती हैं। और क्या ट्यूब फीट का फंक्शन क्या है कि ट्यूब फीट जो है वो किसी ना किसी जो है ये दे एक्ट लाइक अ सकर। जब मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो ट्यूब फीट जो नीचे की तरफ से होती है ना, नीचे की तरफ से सकर की तरह होती हैं। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कोई रॉक है या कोई भी चीज़,
कुछ भी जो सी में पड़ा हुआ है, ये उसके साथ अपने आप को, अपने ट्यूब फीड को उसके साथ, उस सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? अटैच कर लेती हैं थ्रू देयर ट्यूब फुट, अपने फुट के ज़रिए किसी दूसरी जो है वो लिविंग थिंग भी हो सकती है, वो नॉन लिविंग थिंग यानी कि रॉक भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी फिशेस भी हो सकती हैं, उनके साथ अपने आप को थ्रू ट्यूब फुट जो है वो अटैच करते हैं। और जब वाटर जो है ड्रॉन बैक फ्रॉम द सक ट्यूब फूड, जब उनके पाँव के साथ वो मतलब आता है तो वो क्या करता है कि उनका फूड कंट्रैक्ट करता है, और क्या होता है कि बॉडी जो है वो पुल करती है, वाटर इन जाता है, पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसमें से, आपकी बॉडी में से पूरा वो होता हुआ दोबारा जो है वो बॉडी से बाहर भी जो है वो रिलीज हो जाता है। एकाइनोडर्म जो है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटे वो ट्यूब लाइक सिस्टम होता है। माउथ जो है, माउथ है ओपनिंग, सेंटर में माउथ बॉडी के प्रेजेंट होता है। माउथ जो है वो ईसोफेगस में, ईसोफेगस स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद जो है वो रेक्टम जो है वो प्रेजेंट है, और रेक्टम जो है वो ओपन होता है थ्रू एनस, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी का वो थ्रू एनस जो है वो बॉडी से रिलीज हो जाता है। इनकी बॉडी में कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन प्रेजेंट नहीं है। दे पोजेसेस अ पुअर डेवलप नर्वस सिस्टम, इनका नर्वस सिस्टम जो है वो पुअरली डेवलप होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नर्व्स जो हैं प्रेजेंट हैं, ज़्यादातर नर्व रिंग और 5 रेडियल नर्व जो हैं, जो कि हर उनके फुट में जो है एक नर्व जो है वो बेटे गई होती है, सिर्फ और सिर्फ नर्व्स प्रेजेंट है, इसके अलावा कुछ भी जो है नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता। इनकी बॉडी के अंदर सेंसरी रिसेप्टर जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जो कि उनकी बॉडी की सरफेस पे, इसके अलावा ट्यूब फीड पे भी जो है प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है, फॉलोड बाय द रीजनरेशन ऑफ ईच हाफ पार्ट। इनकी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो हम बाकी फाइलम्स में नहीं पढ़ के आए, डैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या चीज़ होती है कि इनकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर वो एक्सीडेंटली कट डाउन हो जाता है तो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो दोबारा रीग्रोथ कर जाता है। उस तरह के फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन का मैंने क्या बताया कि बेटे रीजनरेशन ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंटली, ये उनकी एक सेक्सुअल मोड है कि उनकी बॉडी का, अगर देखो फॉर एग्जांपल स्टार फिश है, अगर वो यहाँ से कट हो जाती है तो ये जो कट वाला जो इसका फुट होगा, ये इसके अंदर भी एक एबिलिटी होगी कि अगर 1 फुट भी रह गया ना तो 1 फुट से दोबारा 4 फुट नहीं निकल आएंगे, और अगर 4 में से 1 उतर गया है तो ये एक जो है वहां पे दोबारा ग्रो कर लेगा। यानी कि ये इसका ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है कि इसके अंदर जो है रीजनरेशन जो है वो हो रही है। रीजनरेशन वो खुद भी रीजनरेशन कर लेते हैं, अगर उनको ज़रूरत हो तो वो खुद भी अपना एक पार्ट जो है वो उतार लेते हैं, या एक्सीडेंटली भी जो है वो बॉडी से कट सकता है, डिसअपियर हो सकता है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर क्या हो रही है? ए सेक्सुअल मोड से हो रही है, जिसमें जनरली जो है रीजनरेशन जो है वो प्रोसेस जो है वो हो रहा है, और जो सारे के सारे काइनोडर्म्स हैं वो क्या हैं? वो यूनिसेक्सुअल हैं। ठीक है, तो दूसरी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात लिखी हुई थी, काइनोडर्म जो हैं ये क्या करते हैं? वही जो मैंने बात बताई आपको कि जो हमने रीजनरेशन का पढ़ा है कि इनका एक्सीडेंटली जो है अगर इनका कोई पार्ट बॉडी का लॉस्ट हो जाए, स्पेशली सी स्टार और ब्रिटल स्टार जो हैं, जब इन वेरियस अपने पार्ट ड्रॉप कर देते हैं अंडर अटैक, तो वो उनके अंदर एबिलिटी है कि उनका पार्ट जो है वो दोबारा रीजनरेट कर जाता है। ये हमने सारी बेटे क्या पढ़ ली थी? हमने मेन सारे करैक्टर जो हैं फाइलम एकाइनोडर्मेटा के जो है मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम एक दफ़ा दोबारा जो मेन हमने सारे जो फीचर्स जो हैं वो पढ़े थे, वो दोबारा उनके मेन पॉइंट्स मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया था कि दे आर मेरीन एनिमल्स, ये मेरीन एनिमल्स हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि इसमें से इनकी डिफरेंट शेप्स हैं, कुछ बिस्किट लाइक है, उसकी कॉमन एग्जाम्पल बताई, कुछ स्टार शेप हैं जिनके आर्म छोटे हैं, कुछ स्टार शेप हैं जिनके आर्म्स बड़े थे। ठीक है, लॉन्ग आर्म्स थे, कुछ ऐसे थे जो ग्लोबुलर थे और कुछ ऐसे थे जो कि एलोंगेटेड थे। शेप के लिहाज से भी इनकी जो है डिफरेंट आगे एग्जांपल्स हैं। फिर मैंने क्या बताया था? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मीन 3, यानी कि इनकी बॉडी की 3 लेयर्स हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एक वर्ड ड्यूट्रोस्टोम सीलियोमेट्स। ड्यूट्रोस्टोम सीलियोमेट्स बेटे पहले मैं आपको बताना शायद नहीं मैंने आपको बताया, ड्यूट्रोस्टोम सीलियोमेट्स ये क्या चीज़ है? ड्यूट्रोस्टोम जो है ये क्या है? ड्यूट्रोस्टोम्स आर सीलियोमेट्स एनिमल्स। मेरी बात पे आप गौर करो, आप इसको लिख भी सकते हो अगर आपका आ गया कि व्हाट आर ड्यूट्रोस्टोम्स, तो आपने बताना है कि ड्यूट्रोस्टोम्स आर सीलियोमेट्स एनिमल्स वेयर द एनस डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है जो कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा में और भी 1-2 क्लासेस हैं उनमें होती है। ये वो डेवलपमेंट है जब बॉडी की जब
डेवलपमेंट है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जब बॉडी डेवलप हो रही होती है तो जो इनका एनस है वो माउथ से पहले जो है ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, माउथ से पहले बन जाता है। तो इस तरह की डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूट्रोस्टोम्स कहते हैं। आप कैसे लिख दोगे, ड्यूट्रोस्टोम्स आर सीलियोमेट्स एनिमल्स वेयर द एनस डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉलोड बाय द माउथ। और बस ये इसका जो है मेन पॉइंट है। और कॉमन एग्जांपल इनकी काइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स जो है, इसकी दो एग्जांपल्स है जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं, ड्यूट्रोस्टोम सीलियोमेट्स कह सकते हैं। कौन कौन किन को कहते हैं हम लोग, कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी मैंने आपको बताई है, अकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। क्लियर हो गया बेटे, अब तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर मैंने क्या बताया, इनके अलावा जो है बायलेटरल सिमेट्रिकल है, लेकिन अडल्ट जो है रेडियल सिमेट्री है, यानी कि उनकी बॉडी को हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मे बी 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5। फिर मैंने क्या बताया था, इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो कैलकेरियस से मिलके बना होता है और इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। उन प्लेट्स को हम लोग क्या कहते थे, ऑसिकल्स कहते थे। और इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट था। ठीक है, ये भी मैंने बताया था। और क्या बताया था मैंने आप लोगों को, इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो था कि इनके अंदर वेल डेवलप वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट था। इनका वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी मैंने कह दिया वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट था। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, एंड स्पेसेस। और उसके अंदर एक रिंग केनाल प्रेजेंट थी जिसने माउथ को जो है वो सराउंड किया होता था। और ये रिंग केनाल बॉडी से आउटसाइड जो है वो एक सीव प्लेट के थ्रू जो है ओपन होती है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, मैड्रीपोराइट कहते थे। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था कि हर जो ये जो रिंग केनाल थी, हमने कहा रिंग केनाल है, रेडियल केनाल्स हैं, ये तमाम के तमाम बेटे आगे फर्दर डिवाइड हो जाती थी। हर फुट के अंदर लेटरल रिंग्स के तौर पे जो है ये एंड होती थी ट्यूब फुट के अंदर। ठीक है, ट्यूब फुट क्या थी, एक्सटेंशन थी। किस चीज़ की एक्सटेंशन थी, मैंने आपको बताया ट्यूब फुट, या आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, ट्यूब फीट आर द एक्सटेंशन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ट्यूब फीट एक्सटेंड करती हैं और ट्यूब फीट का मेन पर्पस क्या होता है कि ये किसी न किसी सबस्ट्रेट के साथ जो है अटैच कर जाती हैं। और जब वाटर जो है इनके साथ टकराता है तो वो क्या होती हैं, ट्यूब फीट के जरिए जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जरिए जो है अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बॉडी से रिलीज हो जाएगा। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। रिस्पायरेशन के लिए और सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई वेल डेवलप जो है ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। पुअरली डेवलप नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली नर्व्स, नर्व रिंग। ठीक है, और सेंट्री रिसेप्टर जो हैं वो बॉडी पे प्रेजेंट हैं, ट्यूब फीट के ऊपर ही प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल मीन्स बाय मीन ऑफ रीजनरेशन जो है वो हो रही है। और इन ये क्या है, दे आर यूनिसेक्सुअल। अगर आप नीचे इस पेपर के आते हो, अपने पेज के नीचे आओ, तो बेटे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। दिस इज केक अर्चन, जो कि हमने कहा था बिस्किट लाइक फ्लैटेंड, वो इसकी आगे आपका आता है सी स्टार। ठीक है, ये सी स्टार है, ये दोनों की शेप स्टार जैसी है, लेकिन इसके आर्म छोटे हैं, इसके आर्म लेंथी हैं। हमने पहले बताया था लॉन्ग आर्म जब हम एग्जांपल कर रहे थे। दिस इज ब्रिटल स्टार, दिस इज सी स्टार। स्टारफिश दोनों में कोई नहीं है। अच्छा, ये सी स्टार है, ये ब्रिटल स्टार है, आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको क्या एग्जांपल दी हुई है, सी अर्चन। क्या कहते हैं इसको बेटे, सी अर्चन। और ये क्या है, ये आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है किसका, स्टारफिश का। इस स्ट्रक्चर पे ज़रा आप लोग गौर करो तो ये सेंटर में जो है इसके एनस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे स्टमक है, ये आपके ये जो पूरी एक आपको एक सिस्टम नज़र आ रहा है, अगर गौर करो, ये सर्कल है और यहाँ से किनाज निकली हुई है, ये रिंग किनाल है। ठीक है, ये तो येलो कलर की किनाज नजर आ रही है, दिस इज रिंग किनाल। ये हर फीट के अंदर एक ट्यूब जा रही है, दिस इज नॉन एज डाइजेस्टिव। और अगर आप देखो तो ये ट्यूब फुट है ना, 1 2 3 4 5, हर फुट के नीचे यहाँ पे बेटे इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप बड़ा करके देखो तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, फुट के नीचे प्रेजेंट होता है। इसको एम्प्यूला कहते हैं, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। क्लियर हो गया, ये क्या हमने कर लिया, ये हमने उसकी बॉडी का जनरल स्ट्रक्चर जो है अकाइनोडर्मेटा का वो देख लिया। मैं आपको अकाइनोडर्मेटा की फर्दर जो है बेटे एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ, ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लैरिटी इसमें आ जाए कि अकाइनोडर्म्स में जो है वो किस किस तरह की जो है एग्जाम्पल्स प्रेजेंट है। अगर आप इस पिक्चर पे गौर करो, ये देखो, ये स्टारफिश है, दिस इज स्टारफिश। ठीक है, और ये आपको मैंने कहा था ना स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होता है, वो नज़र भी आ रहा है। ठीक है,
अगली पिक्चर पे देखो तो दिस इज सी स्टार, ये स्टार फिश नहीं है बल्कि क्या है, ये सी स्टार है, ठीक है। अब ये देखें, ये फाइलम अकानोडर्मेटा का स्टार फिश है। स्टार फिश का आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर बेटे आपको दिखाया गया है। अगर आप गौर से करें बेटे, ये सारे के सारे जो हैं इनके फुट हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो हैं ये छोटे छोटे इस तरह के आपको पॉइंट्स नजर आते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, स्पाइन कहते हैं। हर फुट के एंड पे इस तरह का डॉट नजर आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आई स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, आई स्पॉट, हर एक के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये दरमियान में जो आपको येलो कलर का ये गोल एक सर्कल और ये केनाल्स जो नज़र आ रही है ना बेटे, ये सारा इसका जो है ये सेंट्रल, ये ब्लू कलर की जो है ये सेंट्रल केनाल है, ठीक है। और ये जो ये येलो कलर नज़र आ रहा है दिस इज स्टमक, ठीक है। और ये सेंटर वाला नज़र आ रहा है दिस इज एनस। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अब अगर आओ, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाया है, ब्लू कलर जो है ना ये वाटर को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये वेस्कुलर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये जो ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये एम्प्यूला, ये रेडियल केनाल जो मैंने आपको पढ़ाई थी अभी, ये सारी ट्यूब फीट है ये तो। और ये जो बड़ी वाली ब्लू कलर की है ये सेंट्रल केनाल है, और सेंट्रल केनाल हर आर्म के अंदर डिवाइड हो जाती है रेडियल केनाल में। क्लियर हो गया। इसके अंदर जो है ये तो स्टमक प्रेजेंट था, स्टमक के ऊपर एनस प्रेजेंट था, ये इसके ट्यूब फीड्स हैं। ट्यूब फीड के नीचे यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जिसके साथ ये अपने आप को सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे, हमने मैंने आपको बताया था ट्यूब फीड के ऊपर स्ट्रक्चर है छोटा छोटा, ये वो वाला स्ट्रक्चर है बेटे, गौर करो तो आ रही है समझ। इस ये स्ट्रक्चर हो गया और इसके अंदर जो है गोनेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं वो प्रेजेंट है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम इधर आपको जो है शो किया गया है, ये येलो वाला जो है ना, ये ब्लू वाटर येलो वाला जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ग्लैंड जो हैं वो इसमें प्रेजेंट है, आर्म है, आई स्पॉट है, सीव प्लेट है, कार्डिक स्टमक जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर है। आगे आप लोग आते हो तो ये आपके पास एग्जांपल है, दिस इज नॉन एज ब्रिटल स्टार। ये भी स्टार शेप ही है, लेकिन स्टार फिश में, सी स्टार में और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसके आर्म जो है उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेंथी होते हैं। क्लियर हो गया। आगे हम चलें, दिस इज स्टार फिश, ठीक है। ये स्टार फिश है। ये आपके पास सी अर्चन है। क्या चीज़ है बेटे, सी अर्चन। फिर हमने ड्यूटरोस्टोम्स मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था बेटे कि ड्यूटरोस्टोम्स क्या होते हैं, कि ये वो चीज़ है जहाँ पे बॉडी का ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है कि एनस पहले डेवलप होता है, माउथ बाद में डेवलप होता है। तो इस तरह की डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते थे, ड्यूटरोस्टोम्स कहते थे। क्लियर हो गया। ये वही चीज़ थी मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आपको एक दफ़ा क्लियर कर दूँ। कुछ स्पीशीज़ में इसके इस तरह होता है, कुछ प्रोटोस्टोम्स भी होती हैं जिनमें ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास एक और चीज़ आ रही है, देखने में ये आपको स्टारफिश जैसी लग रही है, बट दिस इज़ नॉट स्टारफिश। इसको बैट स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, बैट, BAT, बैट। वो जो बैट होती है ना दूसरी वाली बैट, उससे थोड़ी बहुत इसकी रिजेम्बलेंस है इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर की, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा, इसका नाम जो है बैट स्टार रखा हुआ है। क्या बेटे, बैट स्टार, आपने याद रखना है, इसका नाम बैट स्टार है। अच्छा, फिर अगली आपके पास जो चीज़ आ रही है, दिस इज़ फीदर स्टार। क्या कहते हैं इसको, इसका कॉमन नेम क्या है, फीदर स्टार बेटे। ये आपके पास लिलीज हैं, वाटर लिलीज कहते हैं इनको, डिफरेंट टाइप की अकाइनोडर्म्स की वाटर लिलीज, ठीक है। ये आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम सारा दिखाया हुआ है, ठीक है। पहले मैंने आपको, ये तो पता ही है ना, ट्यूब फीट जो नीचे आपके प्रेजेंट थे, ठीक है। और जो अंदर थे एम्प्यूला थे, ये गोनेट्स थे, ये सेंटर में एनस प्रेजेंट था, ठीक है। अब अच्छा, ये जो ब्लू कलर का है ये आपका क्या था, मैंने पहले ही बताया था, दोबारा मजीद आप गौर करो। ये जो ब्लू कलर का सेंटर में आपको नजर आ रहा है बेटे, ये क्या है, सेंट्रल केनाल है। सेंट्रल केनाल जो है वो हर आर्म के अंदर, जितनी भी ये इसके आर्म्स हैं, ये फुट हैं, हर फुट के अंदर चली जाती है। जब ये फुट के अंदर जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल केनाल्स कहते हैं। बस आपने ये मेन चीज़ जो है वो याद रखनी है। सेंटर में क्या है, ये सेंट्रल केनाल है, लेकिन जब ये हर फुट के अंदर जाती है तो क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेडियल केनाल कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी। अब हम अगली डायग्राम पे जाते हैं। ये बेटे एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं सी अर्चन, लेकिन ये सी अर्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जो कॉमन नेम है, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग स्पाइन। इसकी बॉडी के ऊपर जो स्पाइंस प्रेजेंट है, मैंने बताया था ना, इन सबकी बॉडी के ऊपर एक स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो ये लॉन्ग स्पाइन सी अर्चन है। क्लियर हो गया। आगे अगर आप लोग आओ तो हमने अभी फिनोमेना हम पढ़ के आए हुए हैं रीजनरेशन का। मैंने आपको रीजनरेशन का फिनोमेना पढ़ाया था, तो ये रीजनरेशन का फिनोमेना आपको दिखाया हुआ, दिस इज ए सेक्सुअल
प्रोडक्शन इन स्टारफिश। देखो अगर एक्सीडेंटली या वैसे ये खुद भी शेड ऑफ कर लेते हैं, यहाँ से ये दो इसके फूड जो है अगर डिसअपीयर हो जाएं, देखो ये डिसअपीयर हो गए हैं, तो वो दोबारा से उनकी जो है ग्रोथ शुरू हो जाती है, दोबारा से देखो ये रीजनरेट कर रहे हैं और ये दोबारा नए स्टार हो गए। अच्छा, तो जो अब दो पीसेस इसके हुए थे ना, एक तो वो जो दो यहाँ से अलग हो गए थे, एक वो जो तीन रह गए थे। अब वो जो तीन रह गए थे उनके भी दो पार्ट नए ग्रो करके, और जो दो रह गए थे उनके तीन नए पार्ट ग्रो करके। यानी कि कोई भी पार्ट जो सेपरेट होता है, जो अगर एक भी फुट रह जाता है ना, तो उससे भी नई स्टारफिश बन जाती है। यानी कि देखो दो से भी नई बन गई और तीन से भी नई बन गई। क्लियर हो गया। फिर आपको एक और फर्दर एग्जांपल है, आपको मैंने दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका एक आर्म नहीं था, तो एक आर्म की रीजनरेशन हुई। यहाँ पे क्या था कि सिर्फ और सिर्फ ये लंबा वाला जो आपको लॉन्ग नजर आ रहा है, ये क्या था, एक आर्म था, सिर्फ एक आर्म था। तो एक आर्म से चार आर्म्स जो हैं वो नए जो हैं वो ग्रो किए हैं। यहाँ पे क्या है कि वन आर्म रीजनरेट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटायर स्टारफिश जो है वो रीजनरेट कर रही है फ्रॉम वन आर्म। यानी कि एक आर्म था जिससे आगे चार आर्म जो हैं वो बन रहे हैं। अच्छा, आगे आपको स्क्रीन पे एक और एग्जांपल नजर आ रही है। दिस इज एग्जांपल ऑफ सी क्यूकम्बर। इसको क्या कहते हैं, सी क्यूकम्बर कहते हैं। एलोंगेटेड शेप इसकी होती है, आपको स्टार्ट पे मैंने पढ़ाई भी थी। आगे आप आओ तो ये भी क्या है, दिस इज आल्सो नोन एज सी क्यूकम्बर। ये भी एलोंगेटेड है, लंबा सा होता है, इसकी ऐसी शेप होती है, इसको क्या कहते हैं, सी क्यूकम्बर कहते हैं। नेक्स्ट अगर आपको जो स्क्रीन पे चीज नजर आ रही है बेटे, दिस इज नोन एज सी लिलिस। क्या कहते हैं, सी लिलिस कहते हैं। कॉमन नाम इसका जो है, कॉमन नेम फिडर स्टार है। ठीक है, आगे आओ, दिस इज आल्सो नोन एज सी लिलीज। ये बहुत ज्यादा है ना, एक हो तो सी लिली होगी, ज्यादा है तो सी लिलीज होंगी। ये भी सी लिली की जो है एक टाइप है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, दिस इज सैंड डॉलर। इसको क्या कहते हैं, सैंड डॉलर कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा देखो सैंड डॉलर है। ये सैंड डॉलर्स ऐसे होते हैं कि ये लगता ही नहीं है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बल्कि इनको देख के ऐसे लगता है जैसे ये छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, लेकिन ये रॉक्स नहीं है, दे आर सैंड डॉलर्स। ठीक है, ये इसकी ज़रा एलोंगेट करके आपको तस्वीर दिखाई हुई है, दिस इज आल्सो सैंड डॉलर। क्लियर हो गया। आगे एक और फर्दर एग्जांपल है, वो भी सैंड डॉलर की है। ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको क्या दिखाई हैं, ये मैंने फाइलम काइनोडर्मेटा की डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको दिखाई, ताकि आपको फर्दर अच्छी तरह क्लैरिटी आ जाए, क्लियर हो जाए कि इसमें किस किस तरह के एनिमल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। स्टार फिश से तो सारे बच्चे फैमिलियर होते हैं, सबको पता होता है स्टार फिश का, लेकिन स्टार फिश के अलावा भी बहुत सारे इसकी जो है एग्जांपल्स ही जो कि मैंने आपको शो की बेटे। आपने फाइलम काइनोडर्मेटा को अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसकी हर करैक्टर, इसकी हर चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहीं पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में नेक्स्ट फाइलम जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अगर आप इस डायग्राम पे गौर करो ना, जाते जाते मुझे फिर नज़र आ गई, ये देखो यहाँ पे आपको वाटर लिलीज के साथ साथ यहाँ पे आपको देखो ये भी नज़र आ रहा है, जो मैंने भी आपको एंड वाला ऑर्गेनिज्म दिखाया था, ये है ना, ये वही है ना, ये देखें। तो ये एक ही जगह पे जो है ये बहुत सारे जो है इनकी कॉमुलेशन जो है वो होती है। इसी के साथ बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा फर्स्ट ईयर। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।